Hello friends, I am Anvesha and I welcome all of you to my channel Aspiring Banker Anvesha. If you are new to this channel, please subscribe to the channel and also click the bell icon to get notified for the upcoming videos. I make videos on English for bank exams. In this series, I am completing the entire grammar portion. Also, the sessions in this series are in Hindi. But after completing the course in this series, I'll be starting the same course in English in the month of March, okay? So aspirants who cannot understand Hindi, don't worry. I'll start the same course in English in March. And this is for, this series is for those candidates who are going to appear for examination in the year 2021. Any bank exam and also SSC exam, okay? So let's start. तो आज हम लोग आर्टिकल पार्ट 2 करेंगे. आर्टिकल पार्ट 1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है. अगर आपने आर्टिकल पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो में आइए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Unacademy is going to start top batches from top educators starting from 24th of Feb. From 24th of Feb, a new batch for SBI Clerk 2021 is going to start, and in this batch, Nimisha Bansal ma'am, Ankush Lamba sir and Ashish Arora sir are going to teach. So here you will get a full coverage of the syllabus, unlimited access to tests, top educators, weekly quiz and mock tests and PDF study materials, and of course doubt clearing sessions. Then a new batch for CET 2021 is also going to start from 24th of February. Also, a batch specially for SBI PO 2021 is going to start, and a batch dedicated for IBPS PO 2021 is also going to start. So there are many batches that are going to start on 24th of February. Then a separate batch which is dedicated for building your base, for building the foundation, that is absolutely from the basic, all the topics will be taught in this batch, that is foundation batch for all SBI exams, okay? So all SBI exams in this batch, SBI Clerk, SBI PO, both will be targeted, okay? Then a target IBPS PO batch will be launched, and this batch will be in Tamil language. So there are many benefits that you get with Unacademy Plus subscription. You can design your own schedule. That is, if you're a morning person, you can enroll in the batches that start in the morning. If you are an evening person, then you can enroll in the evening batches. There is no language barrier. That is, if you want the classes to be conducted in English, then there are many teachers who conduct classes only in English. Then there are many teachers who conduct classes only in Hindi. You can learn anytime, anywhere. Of course, you need only a laptop or a smartphone and an active internet connection. You can interact with your educator in the live classes. You can get your doubts cleared in the doubt solving sessions. Also, you can attend live quiz and tests and get a detailed analysis and reports. After each class, you get PDFs of those classes, that is the study materials from where you can revise. Also, you get recorded sessions of each class. If you want to subscribe to Unacademy Plus, use the coupon code Annie to get a discount of 10%. The 10% discount is going to end on 28th of February, and from 1st of March the 10% is going to become 5%. So subscribe soon, and this is valid for any category. ये है आर्टिकल का सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट मैंने कल कंप्लीट की थी. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट पहले देख लें, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? वो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वाला पार्ट देखिए, ठीक है? तो आज आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद मैं कल आप लोगों के साथ आर्टिकल पर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर नेम ऑफ एनी डिजीज़. कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी का नाम हो, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है. जैसे कि कैंसर, कैंसर के पहले आर्टिकल द नहीं आएगा. डायबिटीज़ से पहले नहीं आएगा आर्टिकल, ठीक है? रीता इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, मोहन हैज़ डायबिटीज़. ऐसा आप नहीं कहोगे कि मोहन हैज़ द डायबिटीज़, ठीक है? तो याद रखना कि डिजीज़ के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि द मीजल्स, द रिकेट्स, द मम्स, द प्लेग, द फ्लू.
इनके आगे द यूज़ होता है, बाकी कोई भी डिजीज़ के आगे द यूज़ नहीं होता है. ओके. स्पेस. स्पेस का मतलब जब हम जगह बताए, जगह, रूम, तब हम उसमें द लगाएंगे. द स्पेस इन द कॉन्फ्रेंस हॉल इज सफिशिएंट टू एकोमोडेट 50 पीपल. तो यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है और इसमें जितनी जगह है, इसमें 50 लोग एकोमोडेट हो सकते हैं. तो यहाँ पे स्पेस का मतलब क्या है? मतलब है जगह या रूम. तो इसलिए यहाँ पे हम लोग द लगाएंगे. ओके. रिलीजियन के आगे कभी भी द यूज़ नहीं होगा, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. जैसे कि बुद्धिज़्म इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ चाइना. तो यहाँ पे द बुद्धिज़्म अगर आप लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है, सिर्फ बुद्धिज़्म. लेकिन येस्टरडे आई मेट अ बुद्धिस्ट मॉन्क, यहाँ पर क्या सीन चल रहा है वो आप देखिए. यहाँ पर ये जो मॉन्क है ना, ये नाउन है, और ये जो आर्टिकल है ये इस नाउन के लिए यूज़ हो रहा है, अ मॉन्क. ठीक है. और ये जो बुद्धिस्ट है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है. ओके. एडजेक्टिव चैप्टर में आप और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए ये जो बुद्धिस्ट है ये एडजेक्टिव है. तो यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ अ मॉन्क? बुद्धिस्ट मॉन्क. बुद्धिस्ट बन गया एडजेक्टिव, और ये आर्टिकल ए यूज़ हुआ है मॉन्क नाउन के लिए. ओके. ठीक है. Yesterday I met the Buddhist monk whom I had spent my childhood with. तो यहाँ पे आप देखिए ये जो मॉन्क है ये नाउन है, और यहाँ पे ये द जो है इस नाउन के लिए यूज़ हो रहा है. और द क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि एक पर्टिकुलर बुद्धिस्ट मॉन्क है जिसके साथ मैंने अपनी पूरी चाइल्डहुड बिताई है. ओके. इसलिए यहाँ पे द यूज़ होगा. कलर. आई हैव अ ब्लू कॉटन साड़ी. तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू है ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है साड़ी के लिए. कैसी साड़ी? व्हाट काइंड ऑफ अ साड़ी? ब्लू साड़ी. ठीक है. तो यहाँ पे ये आर्टिकल जो यूज़ हो रहा है ये इस नाउन के लिए यूज़ हो रहा है. द स्काई वॉज ब्लू एंड क्लीन. ठीक है. द स्काई वॉज ब्लू एंड क्लीन. तो यहाँ पे देखिए क्योंकि नाउन नहीं है तो आर्टिकल यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है. ओके. ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लू क्या बन गया? यहाँ पे ब्लू बन गया नाउन, क्योंकि आप क्वेश्चन क्या पूछोगे? व्हाट इज़ माई फेवरेट कलर. व्हाट का जवाब दे रहा है ब्लू, तो ये बन गया यहाँ पे नाउन. ठीक है. तो ब्लू से आगे आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, तो कलर से आगे आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना है. अगर सेम या होल एडजेक्टिव्स रहे तो द जो है वो उससे पहले आएगा. शी इज़ द सेम वुमन दैट स्टोल माई मोबाइल फ़ोन. तो यहाँ पे देखिए सेम आ रहा है ना, तो सेम से पहले द आ जाएगा. द होल फैमिली इज़ सिक. तो होल आ रहा है तो यहाँ पे द होल से पहले आ जाएगा. इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ कि होल द फैमिली इज़ सिक, होल द फैमिली इज़ सिक, तो ये गलत है. दिस इज़ रॉन्ग. द प्लेस ऑफ द इज़ रॉन्ग. ये द जो है ये आगे आना चाहिए. ठीक है. द होल फैमिली इज़ सिक. ठीक है. ओके. लेट्स स्पेंड द होल वीकेंड इन ऊटी. तो यहाँ पर भी होल से पहले आ जाएगा द. ठीक है. लेकिन अगर ऑल और बोथ रहे तो ऑल और बोथ के बाद में आता है द. ऑल द बॉयज़ आर नॉटी, बोथ द सिस्टर्स आर जेनरस. तो यहाँ पे देखिए अगर मैं कहूँ द बोथ sisters are generous, द बोथ सिस्टर्स आर जेनरस, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे बोथ है ना, बोथ है, बोथ के बाद यूज़ होता है द. तो ये आपका यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है. बोथ द सिस्टर्स आर जेनरस, ये याद रखना. ओके. यहाँ पे देखिए अगर आपका सो रहे, टू रहे या एज रहे. ठीक है. और ये अगर एडजेक्टिव्स के पहले यूज़ हो, इट इज़ टू एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव क्या है? एडजेक्टिव है. फुलिश क्या है? एडजेक्टिव है. क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है. अगर एडजेक्टिव से पहले अगर ये यूज़ हो, ठीक है, और जो नाउन है ना वो अगर सिंगुलर हो, ये है सिंगुलर नाउन हाउस, ये है सिंगुलर नाउन गर्ल, ये है सिंगुलर नाउन वुमन, तब आप क्या करोगे? उस नाउन से आगे ए या एन लगाओगे. ठीक है.
इट इज़ टू एक्सपेंसिव अ हाउस टू बाई, तो देखिए यहाँ पे अ यूज़ हो रहा है. सीमा इज़ नॉट सो फुलिश अ गर्ल एज यू थिंक. शीतल इज़ नॉट एज क्लेवर अ वुमन एज यू थिंक. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट सेंटेंस का मतलब ये है कि ये घर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है मेरे खरीदने के लिए, मतलब मैं इतना कॉस्टली घर खरीद नहीं सकती हूँ. टू एक्सपेंसिव अ हाउस टू बाई. सीमा उतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना तुम सोचते हो उसे. शीतल उतनी क्लेवर नहीं है जितना तुम सोचते हो उसे. ठीक है, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. When article is used only with the first subject, तो सपोज दो सब्जेक्ट्स हैं, देखिए दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और सिर्फ ये देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड सब्जेक्ट है, और सिर्फ पहले सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल है और दूसरे सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल नहीं है, तब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये दोनों सेम हैं. ओके, देखिए यहाँ पे पहले इस एग्जाम्पल से आप देखिए, द प्रोफेसर एंड डीन इज स्पीकिंग विद द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रोफेसर ये है सब्जेक्ट 1, डीन ये है सब्जेक्ट 2, लेकिन आर्टिकल जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट 1 से आगे है, सब्जेक्ट 2 के आगे कोई आर्टिकल नहीं है. इसका मतलब क्या है? ये जो आदमी आप देख रहे हैं ना, ये प्रोफेसर भी है और ये डीन भी है. एक ही आदमी जो प्रोफेसर भी है और डीन भी है. ओके, इसका मतलब यही होता है. अगर मैं कहूँ कि मोहिनी इज माई, ओके, देखिए यहाँ इस तरीके से नहीं, मोहिनी इज अ फ्रेंड, philosopher and guide. यहाँ पे देखिए आपका 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है. ठीक है, 3 है, लेकिन आर्टिकल बस फर्स्ट से आगे यूज़ हो रही है. इसका मतलब क्या है? मोहिनी एक ही पर्सन है, मोहिनी एक ही पर्सन है जो कि फ्रेंड भी है, फिलोसोफर भी है और गाइड भी है. ओके, ठीक है, समझे? अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मीनाक्षी इज वेयरिंग अ रेड एंड येलो साड़ी. ठीक है, मीनाक्षी इज वेयरिंग अ रेड एंड येलो साड़ी. इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स नहीं है, ये एडजेक्टिव्स है, लेकिन देखिए अगर मैं कहूँ अ रेड एंड अ येलो, अगर मैं इस तरीके से कहूँ अ रेड एंड अ येलो, तब क्या हो जाएगा? ये जो आर्टिकल है ये 2 बार यूज़ हो रहा है. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एक रेड साड़ी है और एक येलो साड़ी है, 2 साड़ीज़ हैं. ठीक है, इसका मतलब ये है. लेकिन जब मैं आर्टिकल बस एक ही बार यूज़ कर रही हूँ, बस एक बार यूज़ करी, तब इसका मतलब ये होता है कि बस एक ही साड़ी है जो रेड भी है और येलो भी है. ये इस तरीके से, ये देखिए एक ही साड़ी है, इसमें रेड भी है येलो भी है, तो इसलिए मैं आर्टिकल बस एक ही बार यूज़ करूँगी, 2 बार नहीं. ओके, अंडरस्टूड? तो चलिए अब मैं नेक्स्ट में चलती हूँ. हाँ, यहाँ पे देखिए, When article is used before every subject, हर एक सब्जेक्ट से पहले जब आर्टिकल यूज़ होता है तब क्या होता है? तो देखिए तब इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग होता है. द टीचर एंड द प्रिंसिपल आर स्पीकिंग विद द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर देखिए ये है टीचर S1, ये है प्रिंसिपल S2, दोनों के आगे आर्टिकल यूज़ हो रहा है. इसका मतलब क्या है? टीचर और प्रिंसिपल 2 अलग अलग इंसान हैं. ये है आपका प्रिंसिपल और ये है आपका टीचर. ठीक है, 2 अलग अलग इंसान है, इसलिए मुझे आर्टिकल 2 बार यूज़ करनी है. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. ओके, तो यहीं पर मैं एंड करूँगी. तो देखिए यहाँ पर आपका आर्टिकल का चैप्टर एंड हो जाता है. और भी 1-2 चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो उतना इम्पॉर्टेंट है. ए और एंड वर्सेस वन, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ट्रूली. अगर मैं सच बताऊँ तो इम्पॉर्टेंट नहीं है. ओके, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं.
ही ड्रैंक 4 bottles ऑफ द बियर बिफोर लूजिंग हिज कॉन्शियसनेस। तो देखिए उसने 4 बोतल बियर पी है कॉन्शियसनेस लूज करने से पहले। तो ये कोई पर्टिकुलर बियर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही ड्रैंक 4 bottles ऑफ बियर बिफोर लूजिंग हिज कॉन्शियसनेस। Sometimes the only way to break the cycle of a violence in home is for the wife to leave. The only way to break the cycle of a violence. तो violence जो है वो uncountable noun है, आप कल भी देख चुके हैं, तो इसमें आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। और यहाँ पे इन होम के जगह पे आप एट होम कर दीजिए, और ये क्यों करना है वो हम लोग preposition के चैप्टर में देखेंगे। A Tale of Two Cities is too difficult book to comprehend. तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जब टू रहे और एडजेक्टिव रहे और सिंगुलर नाउन हो तब आपको क्या करना है, नाउन से आगे ए या एंड लगाना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, A Tale of Two Cities is too difficult a book to comprehend। ठीक है। एवरी मॉर्निंग द सन देखिए क्या है, हेवनली बॉडी है, तो हेवनली बॉडी के आगे द यूज होता है, हम लोग कल के क्लास में ये देख चुके हैं। द सन राइजेस इन ईस्ट, डायरेक्शन से आगे भी द यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे द यूज होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड एवरी इवनिंग इट सेट्स इन द वेस्ट। ओके। When I met him the couple of days back, he was writing a book। तो couple of days जो होता है ना, couple of days, तो इसके आगे ए यूज़ होता है। When I met him a couple of days back, मतलब कुछ दिन पहले जब मैं उसे मिली थी तब वो एक किताब लिख रहा था। ओके। फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। तो ये देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी हम लोग कल पढ़े हैं, ये कंसेप्ट हमने कल पढ़ा है। फादर इन हिम का मतलब क्या है, ये एक इंसान है, इसके अंदर ये पर्सनैलिटी है। कैसा पर्सनैलिटी, फादर का पर्सनैलिटी। और वही फादर मतलब वही फादर ये सह नहीं पा रहा था कि उसके डॉटर इतना बीमार है। ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सनैलिटी के आगे क्या यूज़ होता है, द यूज़ होता है, तो यहाँ पे द यूज़ होगा, द फादर इन हिम। अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो कल का क्लास प्लीज़ देख लीजिए। द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिकवरिंग। तो देखिए बोथ के बाद क्या होता है, बोथ जब रहता है तब क्या होता है, बोथ और ऑल, बोथ और ऑल, इनके बाद द यूज़ होता है। हमने आज ही ये कंसेप्ट पढ़ा है, राइट। तो ये द यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से आपको इसे हटाना है और यहाँ पे आपको लिखना है द बोथ द ब्रदर्स। ओके, ठीक है। ओके, चलो। कवर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स, द ब्रेव्स डाई बट वंस। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे द है, ठीक है। तो आपको पता है कि द प्लस एडजेक्टिव अगर आप करें तो वो बन जाता है आपका प्लूरल कॉमन नाउन, इजंट इट। कल हमने पढ़ा था द रिच द पुअर, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। तो एडजेक्टिव आपको लगाना है यहाँ पे प्लूरल कॉमन नाउन समझाने के लिए कि जितने भी लोग जो ब्रेव हैं वो एक ही बार मरते हैं। तो यहाँ पे इसलिए एस आपको हटाना है। ओके, द ब्रेव डाई बट वंस। ब्रेव क्या होता है, ब्रेव हो जाता है आपका एडजेक्टिव। ठीक है। All the people of India know that नेताजी सुभाष चंद्र बोस was a wise, a fierce and a noble man। तो देखिए ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ही इंसान है, तो इसके लिए आपको अलग अलग से आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये एक ही इंसान है। अ वाइज, अ फियर्स एंड अ नोबल का मतलब क्या हो जाता है, तीन अलग अलग आदमी है। एक है वाइज आदमी, एक है फियर्स आदमी और एक है नोबल आदमी, जो कि सही नहीं है। तो इसमें हटा दीजिए आर्टिकल, इसमें भी हटा दीजिए, बस एक ही बार फर्स्ट वाला जो है उससे पहले ए लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अकबर बिकेम अ हेयर टू द थ्रोन एट अ यंग एज ऑफ 13। तो अकबर बिकेम अ हेयर, हेयर का इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, इस तरीके का होता है ना। तो ये वावल वाला साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे एन यूज होगा। ओके। While climbing the hill, to his amazement, the poor man found the box of pearls। हिल में चढ़ने के बाद बहुत ही चकित हो गया ये पुअर मैन, क्योंकि उसे मिल गया एक पर्ल का एक बॉक्स। तो वो चकित हो गया, मतलब क्या है, उसे पता नहीं था कि कोई पर्ल का बॉक्स वहाँ पे रहने वाला है। तो इसका मतलब कोई डेफिनेट पर्ल का बॉक्स वो नहीं था, उसे मिला है बस। तो यहाँ पे द नहीं, यहाँ पे ए हो जाएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल। फाउंड अ बॉक्स ऑफ पर्ल्स। ठीक है।
ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न एट 4 PM. ओके, तो यहाँ पे देखिए लंच डिनर जितना भी मील होता है उसके आगे द यूज़ नहीं होता है. कल ही में हमने पढ़ा है ये, तो यहाँ पे द यूज़ नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. ही वेंट फॉर लंच. ओके, whole world is facing the threat of extinction due to the greed of human beings. whole world, जब भी whole रहे तब क्या करना है आपको? whole रहे, same रहे. जब whole रहता है, same रहता है, तब आपको क्या करना होता है? the इससे आगे आपको लगाना होता है, तो यहाँ पे the यूज होगा. the whole world. The whole world is facing the threat of extinction. ओके, तो यहाँ पर आपका क्लास एंड हो जाएगा और आपका आर्टिकल चैप्टर भी एंड हो जाता है. यहाँ पर मैं सोची थी एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस आपको कल करवाऊंगी, लेकिन आज ही हमने ख़त्म कर लिया एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस. तो अब आपको मैं एक होमवर्क दूंगी और वो ये है कि आपके पास जो भी बुक है उससे आप आर्टिकल वाले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है उसके एक्सरसाइज में वो पूरा आप ख़त्म करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आर्टिकल चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा. ओके, मैं फिर से मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए. मैं फिर से मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.